Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to a new day of learning. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू थिंक इन इंग्लिश. यस, आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लर्नर्स के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश. I'm going to share a few tips with you that are really going to help you to be a fluent speaker in English. Now what you have to do is watch this video till the end and don't forget to give a big thumbs up and subscribe to this channel so that you never miss an update. So here's the first question. Why thinking in English is important? Like, why are we talking about this? क्या English में सोचना इतना important क्यों है? सबसे पहले तो हम इससे भी जो above चीज़ है वो ये है कि why to be good in English is very important. अगर आप इंग्लिश में सोचेंगे, आप अपना थिंकिंग प्रोसेस ऐसा डेवलप करेंगे, आप अपने ब्रेन को हैबिचुअल करेंगे टू थिंक इन इंग्लिश, तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे? इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी. It will enhance your vocabulary. It will boost your confidence. जब आपको confidence improve होगा, आपका confidence अच्छा होगा, तो definitely आप बहुत ज़्यादा obstacles को overcome कर सकते हैं. Either you are going for an interview, you are going for a presentation or anything in your life. अगर आप confident होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए sort out हो जाएंगी. बेटर अंडरस्टैंड नेटिव स्पीकर. अगर आप बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर होंगे तो आप नेटिव स्पीकर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सिंस लिविंग इन अ कंट्री वेयर यू गेट टू मीट डिफरेंट फॉरेनर्स एंड पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश. तो जब आप एक दूसरे पर्सन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे, एक फॉरेन स्पीकर को, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट is expand your career opportunities. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, if you are good at speaking English, तो आपके लिए डेफिनेटली एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी. आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते होंगे विद गुड कॉन्फिडेंस, गुड विकैबुलरी, गुड स्पीकिंग, तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन ज़्यादा हो जाएगा. सो दीज आर द थिंग्स that are the result of getting a good understanding of a language. Now, since we are talking about thinking in English and learning a target language, and here the target language is English, एक बहुत common mistakes है जो सारे learners करते हैं. Do you have any idea about that? कि ऐसी कौन सी common mistake है जो सारे learners करते हैं while trying to learn English? Yes, that is direct translation from native language. Let's, for instance, I am a Punjabi speaker. Punjabi is my native language and I am learning English as second language. English is my second language. अब जब मैं अपनी native language से target language में translation करूँगी, तो मैं अपने native language की grammar को as it is English में translate करूँगी, which is the most disastrous mistake that one can ever do. This is not the way. This is not how you are going to learn the target language. हम ऐसे target language को learn नहीं कर सकते. Because English language has its own rules, its own grammar, its own sentence structure. तो उसी को follow करते हुए हमें target language को learn करना है. और यहाँ पे जो मैं आपसे बार बार target language कह रही हूँ, the target language I'm referring is English. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लेट्स फॉर इंस्टेंस मेरी मदर टंग, मेरी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है और अब मैं उर्दू से इंग्लिश सीख रही हूँ. आई एम ट्राइंग द डायरेक्ट ट्रांसलेशन मेथड. अब मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ? सबसे पहले हम उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. जैसे कि हमने बात की, हर लैंग्वेज का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. मैं खाना खाता हूँ, दिस इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ उर्दू. मैं इज अ सब्जेक्ट, खाना is object, that is food in English, and khata is a verb, it is showing us an action. तो आप यहाँ पे sentence structure को जरा गौर से देखें. Here is subject, object and verb. Here is following the pattern of SOV, subject, object and verb. ये हमारे पास उर्दू का केस है. Now let's come to the English. Here it is.
SOV, and in case of English we have SVO. So अब आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो गया कि what is the most common mistake that learners do while learning the target language. It is not possible to convert native language into target language. So what is the solution of this? The only solution of this is to start thinking in English. अगर आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करेंगे तो it will automatically help you translating in the target language. Alright, now I'm going to share few steps with you that are really going to be very helpful for you कि आप इंग्लिश में think कर सकेंगे. Obviously for a learner who is at a very beginning, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि how to think in English. But trust me, following these steps would be very much helpful for you to think in English. You just have to do two things, consistency and hard work. You have to be very consistent with these steps and you should do hard work. आपको ये steps करने हैं और consistency से करने हैं. And these steps are really going to be very helpful for you. Step number 1 is start by writing down your daily routine in English, including all the activities you do from waking up to bedtime. आप वो सारी चीज़ें जो सुबह से शाम तक करते हैं, आपने कुछ नहीं करना. Just take out your diary, any copy, और उसमें आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो भी आपने सुबह से शाम तक किया. Now let me share an example with you. जैसे कि you wake up at 7 a.m., you brush your teeth, you wash your face, you have breakfast, you have dinner, you go to bed at 10 p.m. और इसके अलावा so on and so forth. All the stuff that you do in a day, you are going to pen it down. You are going to write it on a paper. That is the first step. And in which language are you going to write it? In the target language. And what does target language mean here? Is in English. Because हमारी यहाँ पे जो target language है, that is English. Now let's come to step number 2. Alright. Step number 2 is very important. It's use visualization technique. आपने अपने आप को visualize करना है performing each activity in your daily routine. For example, imagine yourself brushing your teeth, having breakfast or watching TV. You just have to visualize. Close your eyes and imagine yourself brushing your teeth, having your breakfast or watching TV. आपने अपने आप को imagine करना है कि आप TV watch कर रहे हैं, आप अपने दांत brush कर रहे हैं या आप अपना नाश्ता कर रहे हैं. इन चीज़ों को अपने माइंड में विजुलाइज करें तो आपको अपना आप ऐसे फील होगा कि हाँ, नाउ आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम वॉचिंग TV, आई एम डूइंग जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको आपने विजुलाइज करना है, उसको आपने अपने सामने इमेजिन करना है. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको अपने माइंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं उसके बाद आपके माइंड में आता है कि हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू पुट टूथपेस्ट, नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, नाउ आई एम गोइंग टू डू दैट. ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग इनटू योर माइंड. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपने उसको अपने माइंड में जो रिकॉल करते हैं, जैसे उर्दू में, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश. आपने अपने आप को प्रैक्टिस करवाना है टू थिंक इन इंग्लिश. Alright, now let's move to step number 3. Step number 3 is, I think this is one of the most easy step, unconscious learning of language. और इससे बहुत अच्छी तरह से आप language सीख सकते हैं. Practice with a friend or family member. Ask a friend or family member to quiz you on daily routine in English. आपने अपने ऐसे फ्रेंड्स, अपना ऐसा सर्कल जनरेट करना है जो कि मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनकरेज करता हो. बिकॉज इनिशियल लेवल पे ऐसा होता है व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग अ टारगेट लैंग्वेज, पीपल यूजुअली आपका मजाक उड़ाते हैं. दे जस्ट शैटर योर कॉन्फिडेंस, मेक यू फील लो कि तुमसे नहीं होगा. तो आपने ऐसा सर्कल जनरेट करना है जो कि शौक रखता हो टारगेट लैंग्वेज को लर्न करने का. इसके 2 फ़ायदे होंगे. नंबर 1 इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी ऐसे लोगों के साथ रह के, ऐसे सर्कल के साथ रह के, क्योंकि जो मिस्टेक आप कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ कर रहे हैं. सेकेंडली, आप लोग एक दूसरे को हेल्प आउट करोगे. यू बोथ कैन हेल्प ईच अदर. किसी चीज़ में समझ नहीं आई वो आपको हेल्प करेंगे, एंड इट्स अ 2-way प्रोसेस. हेल्पिंग ईच अदर वुड
be a really good way of learning. और plus अगर आप ऐसे learners से, ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करेंगे, they are already good at English, तो आपकी unconscious learning होगी, यानी कि आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी कि ओ मैं लर्न कर रहा हूँ. इट वुड बी जस्ट लाइक आप अनकॉन्शियसली चीज़ें लर्न करना शुरू करेंगे. उनके साथ रह के, उनकी कंपनी में रह के, यू विल स्टार्ट लर्निंग टारगेट लैंग्वेज इन अ वेरी ईजी वे, जो कि आपको एफर्ट पुट ऑन नहीं करनी पड़ेगी. So I think this is one of the best step in case if you want to learn a target language. Let's move to step number 4. Step number 4 is all about effort. It's just like review and repeat. Review your daily routine regularly and repeat the process of recalling it. This will help you reinforce your memory and improve your ability to recall your routine in English. इसमें आपने कुछ नहीं करना. जो भी आपने अपने स्टेप्स रिपीट किए हैं, जो भी आपके सारे स्टेप्स रहे हैं इन ऑल द डे आपने किया है, उसको आपने बार बार रिव्यू करना है और रिपीट करना है अपने माइंड में. Just sit in a quiet corner of your house or your room and pen down all the activities that you did in a day. Now what you have to do is review it. Review it and repeat it. In case if you have missed something, write it again. रिव्यू इट, उसको बार बार सोचें उसके बारे में, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें और अपने माइंड को इस चीज़ का हैबिचुअल बना दें. इतनी कंसिस्टेंसी अपनी रूटीन के अंदर लाएं कि आपने हर रात को, एवरी सिंगल नाइट यू हैव टू डू दिस स्टेप. तो ऑब्वियसली एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एफर्टलेस लगने लगेंगी. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीकिंग की. ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू अ लॉट विद राइटिंग. ये ना सिर्फ आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करेगी बट इट विल हेल्प यू विद योर राइटिंग एज वेल. आप इसके साथ साथ अपनी रिटन को इम्प्रूव कर सकते हैं. और इसके साथ साथ जब आप अपनी रिव्यू को प्रोसेस आप कर रहे होंगे, चीज़ों को अपने माइंड में रिवाइज कर रहे होंगे, तो डिफरेंट चीज़ों को रेफ़र करने के लिए आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगी कि हाँ मैंने आज दिन में ये किया था लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं. आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सर्च करोगे, उस चीज़ से रिलेटेड वोकैबुलरी सर्च करेंगे, तो आपके माइंड में नए वर्ड्स आएंगे, आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होगी, आपका कॉन्फिडेंस इन्हांस होगा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर डेवलप होगा, आपका एक प्रॉपर टारगेट लैंग्वेज लर्न करने का एक वे बनेगा. Alright, now that's all for today. I hope this video is very helpful for you all, and trust me, what you have to do is you have to be consistent and put on effort, and you are going to be very much good in the target language. These tips are very much helpful for you in future. Thanks for watching and stay tuned for more updates.